चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली कैपजेमिनी ने अनाउंस किया है हायरिंग फॉर फ्रेशर्स। तो लेट मी शो यू इज इट ट्रूथ और नॉट। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यस, कैपजेमिनी इज एक्टिवली हायरिंग फॉर बोथ 2024 and 2025 batch freshers, and they are planning to hire a significant number of employees in 2025 with focus on AI skill talent. तो गाइस, अब इट्स अ ट्रेंड, लाइक हम लोग देख सकते हैं कि इन आईटी सेक्टर nowadays many layoff are going on because of this AI trend, because they are involving AI skilled. तो इट्स बेटर टू आप लोग स्टार्ट कर दें एआई टेक्नोलॉजी, एआई स्किल्ड को सीखना। और और जो 2024 में पास आउट और 2025 बैच के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कैपजेमिनी में। अभी हायरिंग चल रही है। और गाइस प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज total for 2025, as you can see, like total 45,000 people in 2025 they are planning to hire, and in this both campus and lateral hiring included. You can see they are mainly focused on the AI skill talent, and in this way you can just I can show you like it's a good means correct news or not. You can see the Times of India, Capgemini hiring news for 2025 and 2026 for sorry for batch. So let's see. See, this is the Economic Times, so we can believe on it, this channel. So here you can see like feasibility was in RB said that the IT services major clients look to cut costs and improve efficiency, and India becomes an increasingly attractive delivery phase. And this demand is expected to contribute positively to the company overall revenue we had. So you can see here the clear like Capgemini India to hire up to 45,000 in 2025, focus on AI ready workforce. So please start working and please start upskilling yourself on AI skilled, okay? And please go through this all. Between process you can see here. This is the website of the this Capgemini. You can come to this Capgemini site, and from here you can just go to the career page, recruitment process and all. This is the career page of the Capgemini. Here you can, according to your profile, your skills, you can just apply. So guys, those who are passed out in the 2024 and 2025, please follow the steps, and please try to sorry, apply for this job. You can see particularly for roles within the Acceler program for technical graduates. Okay, so you can see how many freshers will Capgemini hire in. So up to 45,000 people.
through campus and lateral and despite ongoing IT sector. As we know, currently in the Infosys, Finance is going to, TCS, sorry, TCS is announces that going to lay off the total, I think, 12,000 employees layoff is going on. So ऐसी बात नहीं है कि लेऑफ चल रही है तो हायरिंग नहीं हो रही है, हायरिंग भी चल रही है, बट आपको स्किल अप करने की जरूरत है. तो प्लीज डोंट स्टक समवेयर, ट्राई टू लर्न द स्किल्स, ट्राई टू इन्वेस्ट टाइम ऑन योरसेल्फ to build your career beautiful. Okay, and please try to search the sites and all the what the companies currently hiring. This channel is also provide the good knowledge, means it's a correct knowledge, the genuine site. So preference that you can follow this, and here you can know, here आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि प्रोसेस क्या है, इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है कैप्चर का. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ राउंड यहाँ 5 है. 5 में टेस्ट टाइप नॉन एडेप्टिव होगा. प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जाम कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म पे हो ये एग्जाम. तो क्लास 10th का मार्क्स जो है मिनिमम 60% होना चाहिए. क्लास 12th का मिनिमम 60%, ग्रेजुएशन 60%, बैकलॉग नहीं होना चाहिए गाइस. तो ये आपको मन में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए. अगर किसी की बैकलॉग है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं. और आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस में 5 राउंड है. ठीक है, टेक्निकल टेस्ट होगी, इससे राइटिंग टेस्ट होगा, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, स्पोकन इंग्लिश की टेस्ट होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एंड कोडिंग होगा, एंड देन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा. सो ये केवल जो है ऑफ कैंपस के लिए है. ऑफ कैंपस का मतलब कि आपको ऑनलाइन जो भी साइट है वहां से जा करके अप्लाई करनी है. और ये सारे प्रोसेस से आपको फॉलो करना पड़ेगा. वन बाय वन आपको ये सारी प्रोसेस क्लियर करनी पड़ेगी. इट्स नॉट अ ऑन कैंपस. ओके, ऑन कैंपस होता है कि वो कॉलेज में ही आपकी प्लेसमेंट होती है, कॉलेज में ही कंपनियां आती है तो हायर करती है. ओके, तो इसका कंफ्यूज नहीं होना है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि राउंड 1 ऑनलाइन टेस्ट ऑफ कैपजेमिनी एक्सेलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में राउंड 1 टेक्निकल टेस्ट है. ओके, तो इस राउंड में आपका टोटल 45 क्वेश्चन जो है, जो कि एमसीक्यू ही रहेगा, पूछे जाएंगे, और 45 मिनट्स टाइम रहेगा. यहाँ पे आपको ignore the syntax error like missing semicolon, bracket, and work on the logic, as this is elimination also will proceed only if you clear this round. तो ये elimination round है, तो आपको फर्दर नेक्स्ट स्टेप के लिए तभी मूव कर पाओगे जब आप ये वाला फर्स्ट टेस्ट है टेक्निकल टेस्ट को क्लियर करोगे. ओके, फिर सेकेंड में आएगा ऐसे राइटिंग. ऐसे राइटिंग में वही है कि आप में जो भी है क्लैरिटी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर आप कैसे ऐसे राइटिंग लिखते हो, और ग्रामर जो है इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. ये भी एलिमिनेशन राउंड ही है. फिर थर्ड जो है गेम एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. इसमें जो है आपको टोटल 24 गेम्स दिया जाएगा, जिसमें से 4 गेम्स आपको सेलेक्ट करना है. ओके, अब इस गेम में क्या है कि आपको हाईएस्ट लेवल, जितना आप जिस लेवल तक जा सकते हो, जो टाइम दिया हुआ है उतना तक आपको ट्राई करना है. मतलब एक कैलकुलेटेड टाइम होगा, फिक्स टाइम होगा, उस फिक्स टाइम में आप कितना लेवल तक उस गेम में जा सकते हो. और आपका टाइम लिमिट पर गेम टाइम लिमिट 25 to 30 मिनट्स होगी. ओके, यू हैव पास देम क्विकली एंड विथ एक्यूरेसी, तभी जा करके आपकी ये जो है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर होएगी. स्पोकन इंग्लिश होगा. अगर आपका गेम बेस्ड क्लियर हो जाता है तो स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा कि यहाँ पे आपको ग्रामर और रीडिंग कम्प्रिहेंशन होगा, फिर लिसनिंग होगी, फिर स्पीकिंग होगा. मतलब लिसनिंग होगा कि एक बार आपको सुन करके जो भी सेंटेंसेस की होगी उसमें सुन करके आपको बोलना है. और थर्ड स्पीकिंग होगा
कि इसमें आपको कोई भी कम्प्रीहेंशन दिया रहेगा उसको आपको बोलना है बस। फिर उसके बाद है, अगर सपोज आपने स्पोकन इंग्लिश भी क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद आपका लास्ट जो है टू आए कोडिंग। कोडिंग में आपको वही coding system only for those students who have qualified in till spoken English round. ओके, जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर स्पोकन इंग्लिश राउंड तक क्वालिफाई कर चुके हो, क्लियर कर लिया है, तभी आपको कोडिंग राउंड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसमें आप कोई भी लैंग्वेज जो आपको आता हो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो। और वंस यू विल गेट दिस क्लियर दिस कोडिंग राउंड also, the second round will be technical interview round will be there। तो इसमें क्या होगा, सेकेंड राउंड में आपको टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाएगा रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, योर फाइनल प्रोजेक्ट। बेसिक कोडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। फिर पूछते हैं कि आप जिस कंपनी के लिए लाइक कैपजेमिनाई के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या इस कंपनी के बारे में नॉलेज है या नहीं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इस कंपनी को। तो आपको आपको ये इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो आप कैसे जानोगे कैपजेमिनी के बारे में, आप सिंपली इसके करियर साइट पे जाओ, कैपजेमिनी के साइट पे, एंड देन आप वहाँ से सारा डिटेल्स जो है गैदर कर सकते हो। फिर अगर आपने टेक्निकल राउंड भी क्लियर कर लिया, तो थर्ड राउंड जो है एचआर इंटरव्यू होती है। एचआर इंटरव्यू में सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो तो आपको आने ही चाहिए, और इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट और डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, सो ये सब तो कॉमन क्वेश्चन, वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई कैपजेमिनी, आप क्यों कैपजेमिनी ज्वाइन करना चाहते हो, सीईओ कौन है इस कंपनी का, आप इसके बारे में जानते क्या हो, आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, या आप कंफर्टेबल है नाइट शिफ्ट में। तो ये सब में आपको क्या है ना, अगर आप सीरियस कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट ऐसे आपको ऑलवेज जो है बोलना चाहिए कि यस आई एम कंफर्टेबल विद द नाइट शिफ्ट एज वेल। ओके, फिर उसके बाद आपका फेवरेबल एरियाज क्या है जिस पे आप वर्क करते हो मेनली, जैसे कि किसी किसी की कोडिंग में ही ज़्यादा मन लगती है, किसी को कोडिंग में मतलब कॉमन उतना नहीं, सपोर्ट एप्लीकेशन वर्क हो गया, टेक्निकल नेटवर्क से रिलेटेड, इस सब में ज़्यादा वर्क हो, सर्वर से रिलेटेड जो भी है, या बैकअप हो लेनी है, या डिप्लॉयमेंट है, उसमें किसी को ज़्यादा मतलब सही लगता है तो वो उसको प्रेफर करते हैं। तो आपका कौन सा फेवरेबल एरियाज है आप वो बता सकते हो। फिर उसके बाद है, हाँ, ये क्वेश्चंस भी कॉमन है कि आप अपने बारे में बताएं वो चीजें जो अपने रिज्यूम में नहीं मेंशन किया है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, हम लोग तो सारी कुछ मेंशन नहीं कर पाते हैं, तो अपना हॉबीज हो गया, स्किल्स हो गई जो आपने मेंशन नहीं किया है, बट या वो स्किल्स ऐसा बताना है जो कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से हो, हेल्प करे आपको सेलेक्ट होने में। तो दिस वे आप जो है इसमें आप जा कर के अप्लाई कर दो, क्योंकि इट्स अ मास हायरिंग, 45,000, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। ओके, तो आप जाएं, इसको अप्लाई करें, और प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योरसेल्फ। आई विल कम विद द नेक्स्ट अपडेट। ओके, so till then